আমাদের জীবন করে বসে। আসলে আমরা আজকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে প্রভু তুমি আমাদের জীবনে আরেকটি দিন যোগ করলে, যিশু, যে আমি তোমার ভবনে আসতে পেরেছি প্রভুজি। প্রভু আমি তোমার আরাধনা নিতে আসতে পেরেছি প্রভুজি। প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি যিশু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমায় যোগ্য করেছো যিশু, তাই তোমায় ধন্যবাদ যিশু। প্রভু তুমি আমাদের প্রত্যেকে বেঁচেছো যিশু, আমাদের নির্বাচন করেছো যিশু, তাই প্রভু তোমার ধন্যবাদ। আসলে আজকে আমাদের নিজের হৃদয় খুলে দিই, আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করি আর বলি, প্রভু তুমি আমার হৃদয়ে সহায় যিশু। আমার হৃদয় খুলে দিই, তুমি এসো প্রভু, আমার জীবন সঁপে দিই, গ্রহণ করো প্রভু। আমার হৃদয় খুলে দিই, তুমি এসো প্রভু, আমার জীবন সঁপে দিই, গ্রহণ করো প্রভু। আমার হৃদয় খুলে দিই, তুমি এসো প্রভু, আমার জীবন সঁপে দিই, গ্রহণ করো প্রভু। আমার হৃদয় খুলে দিই, তুমি এসো প্রভু, আমার জীবন সঁপে দিই, গ্রহণ করো প্রভু। তোমার আত্মায় আমাকে মুক্ত করো, তোমার আত্মায় আমাকে ধৌত করো, তোমার আত্মায় আমাকে শুচি করো, তোমার আত্মায় আমাকে নিজের জীবন সমর্পণ করুন। আজকে প্রভু যিশুর হাতে নিজের হৃদয় সমর্পণ করুন। আর প্রভুকে বলুন যে প্রভু আজ তোমার আত্মা দ্বারা প্রভু আমাদের জীবন অভিষিক্ত করে দাও যিশু। প্রভু আজ তোমার বাক্য দ্বারা প্রভু আমাদের জীবন তুমি অভিষিক্ত করে দাও যিশু। প্রভু আজ তোমার রক্ত দ্বারা যিশু তুমি আমাদের জীবন অভিষিক্ত করে দাও প্রভুজি। কারণ প্রভু আমাদের জীবনে তোমার অভিষেকের দরকার আছে যিশু। কারণ প্রভু তোমার অভিষেক ছাড়া যিশু আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই প্রভুজি। তাই প্রভু আজ তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে স্থান তুমি ভরে দাও যিশু, এবং আমাদের জীবনে তোমার অভিষেক দাও যিশু। তোমার বাক্যে আমাকে নম্র করো, তোমার বাক্যে আমাকে যোগ্য করো, তোমার বাক্যে আমাকে দ্রুত করো,
করো যে প্রভু তোমার বাক্যে আমার অভিষেক করো যিশু, প্রভু তোমার রক্তে আমার অভিষেক করো যিশু, প্রভু তোমার আত্মায় আমার অভিষেক করো যিশু। তোমার রক্তে আমাকে অভিষিক্ত করো, তোমার আত্মায় আমাকে অভিষিক্ত করো, তোমার রক্তে আমাকে অভিষিক্ত করো, তোমার রক্তে আমাকে অভিষিক্ত করো। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का इतना सुंदर दिन देने के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तूने आज इस संडे को प्रभु तूने सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो रास्ते पर है प्रभु ने तू सही सलामत लेकर आ प्रभु। प्रभु तू दया कर प्रभु, आज जो भी कुछ होगा प्रभु, वचन बोलना प्रभु, गीतों का गाना प्रभु, सब कुछ प्रभु आपकी ओर से आया, आपकी स्तुति हो प्रभु से। प्रभु तू दया कर सभी के जीवन में प्रभु, तू नए नए कार्य कर प्रभु, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारे पास्टर अंकल को तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु, तूने भी चला प्रभु, तू उनसे भी बातें कर ताकि हम प्रभु सुने उन सारी बातों को प्रभु। तू दया कर प्रभु, उन्हें सुनकर प्रभु चलने वाले बने प्रभु। प्रभु हमें ऐसा विश्वासी बना प्रभु, तू अनुग्रह कर परमेश्वर। ये छोटी सी विनती यीशु तेरे नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन। প্রেজ গড, হালেলুয়া। আমরা প্রত্যেক খুশি তো ঈশ্বরের ঘরে এসে আমরা আনন্দিত তো? আজ আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বাস করে তৈরি তো? আজকে আমরা যিশু নামে উল্লাস করবো, হালেলুয়া, প্রেজ গড। সবাই মিলে একসাথে
हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। इस सुंदर मधुर से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। इस सुंदर मधुर से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके सिवा यीशु नाम सामर्थ्य है, पत्ता भी हिलता ना उसके सिवा यीशु नाम सामर्थ्य है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, हमको ही नहीं तेरी जगाए सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah। আজকে আপনাকে এত জোরে হালেলুয়া বলতে হবে যাতে স্বর্গে থেকে যিশু শুনতে পায়। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রেজ গড। কারো কি ঘুম কাটেনি এখনো? সবাই কি চিন্তিত আমরা? হয়তো প্যান্ডামিক সিচুয়েশন আছে, কিন্তু আজকে আমি আপনাকে বলতে চাই আপনার ঈশ্বর আপনার সাথে। হালেলুয়া। এখন যিশু বলছে আমি তোমাকে কখনো ছাড়বো না। তিনি সর্বদা আমাদের সাথে আছে, তিনি সর্বদা আপনার পাশে আছে। হয়তো আপনি নির্জন স্থানে একা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর আপনার পিছনে আছে। হয়তো আপনি ভেতর থেকে ভাবছেন আমি একা, আমার পাশে কেউ নেই, কিন্তু যিশু বলছে আমি তোমার সাথে আছি। প্রেজ গড, আমেন, হালেলুয়া। আমি একটা গান গাইবো, আপনার সাথে গাইতে হবে আমার সাথে গানটা। আমরা বলবো यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। যখন যিশু আমাদের জীবনে আসে না, তখন জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তো জীবন में सब कुछ मिला। প্রেজ গড, হালেলুয়া। আজকে আপনাকে যিশু নামে উল্লাস করতে হবে। আজকে ভয় বাধা ভুলে গিয়ে আজকে যিশু নামে উল্লাস করতে হবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রেজ গড। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला।
यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ तो जीवन में सब कुछ तो जीवन में सब कुछ আজকে যদি আপনার জীবনে যিশু আছে তাহলে আপনার জীবন সম্পূর্ণ। আজকে যদি আপনার পাশে যিশু আছে তাহলে আপনার জীবন পূর্ণ। আজকে যদি আপনার সঙ্গে সঙ্গে যিশু আছে তাহলে আপনাদের জীবন সম্পূর্ণ। হালেলুয়া। पापों को नहीं जानते बदले जान के मेरे सोनी पड़े दिया पापों को मेरे जानते बदले जान के मेरे तूने सारे बंधन साथ है किया, तूने सारे बंधन साथ है किया और जीने का मकसद और जीने का मकसद यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ तो जीवन में सब कुछ तूने सारे बंधन आजाद है किया, तूने सारे बंधन साथ है किया और जीने का मकसद और जीने का मकसद यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया पाशे चलिए बोलूं यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। आज के मुंह खोलो बोलो यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तूने सारे बंधन साथ है किया, तूने सारे बंधन साथ है किया और जीने का मकसद और जीने का मकसद यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ 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 आज के हमारे जीवन में यीशु आज अगर हमारे जीवन में यीशु है तो हमारा जीवन संपूर्ण है। आज अगर हमारे जीवन में यीशु है तो हमारे जीवन में सब कुछ है। आज हो सकता है हम प्रभु को बहुत स्तुति देते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, लेकिन फिर भी हम विचलित हो जाते हैं, फिर भी हम पाप करते हैं और बाइबल कहती है हमारे पापों की वजह से प्रभु से हम लोगों का संपर्क दूर हो रहा है। तो आइए आज जिंदा खुदा को, उस जिंदा परमेश्वर को बुलाते हैं। प्रभु आज तो कुछ बोल यीशु,
तेरे वचनों से बोल यीशु। प्रभु मैं तड़प रहा हूं यीशु तेरे वाणी सुनने के लिए यीशु। आज तू कुछ बोल यीशु। प्रभु मैं पापी हूं यीशु, लेकिन प्रभु तूने बताया तूने पापी के लिए इस धरती पर आया यीशु। आज कुछ बोल यीशु तू। प्रभु समय बहुत कठिन है यीशु, लेकिन मेरे पास अगर तू हो तो सब कुछ संभव है यीशु। मेरे पास अगर तुम हो यीशु तो हमारा जीवन संभव है यीशु, तो हमारा जीवन संपूर्ण है यीशु। आज मुझे तेरी जरूरत है यीशु। आज तो कुछ बोल यीशु, आज तो कुछ बोल यीशु।
সম্পর্ক অনেক দূরে, কারণ প্রভুর বাক্য বলে আমাদের পাপের জন্য ঈশ্বর থেকে আমরা অনেক দূরে আছি। আমাদের পাপের জন্য প্রভু যিশুর সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে। আজকে আসুন নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করি। আজকে আসুন নিজের হৃদয়কে ঈশ্বরের সাথে নত জানু হই আর প্রভু বলে, প্রভু আজ তোমার বাক্য দ্বারা যিশু আমার জীবনকে সম্পূর্ণ করে দাও যিশু। প্রভু আজ তোমার বাক্য দ্বারা যিশু আমাদের আত্মাকে সম্পূর্ণ করে দাও যিশু। প্রভু আজ তোমার আত্মা দ্বারা প্রভুজি আমাদের জীবনকে ভরপুর করে দাও যিশু। আজকে মুখ খুলে
सुना दे कहानी तू अपनी सुना दे कहानी तू अपनी सुना दे मौजूद है प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस विश्रामवार के दिन प्रभु, इस गरीब पिता हम तुझे धन्यवाद भरी नौकरी का भेंट चढ़ा दे प्यारे परमेश्वर। अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण आत्मा से प्रभु आज हम तुझे धन्यवाद की नौकरी का भेंट अर्पण करते हैं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। ओ प्रभु मेरा धन्यवाद प्रभु, प्रभु सच में प्रभु मेरे इस जीवन में प्रभु जो भी कुछ है प्रभु तेरा दिया हुआ है प्रभु, हर खुशी प्रभु तूने दिया प्रभु। प्रभु अगर सबसे ज्यादा किसी को मेरी चिंता थी प्रभु तो वो तुझको दी प्रभु। और हम विश्वास करते ना जाने कितने भाई और बहनों के जीवन में प्रभु तूने अपनी खुशी को उड़ेला है प्यारे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, अगर हम अपने विश्वास में कहीं कमजोर हो रहे हैं पिता तो हमारे अविश्वास का उपाय तू कर प्रभु, हमारे अविश्वास का उपाय तू कर मेरे प्यारे परमेश्वर। और हमें और भी अपने विश्वास में मजबूत बना पिता। ओ प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोल पिता ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके पिता। आज भी पिता उठते हैं पिता तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं पिता, लेकिन सच में पिता कहीं ना कहीं हम तुझसे दूर हो जाते हैं। ओ प्रभु सहायता कर प्यारे परमेश्वर कि हम तुझसे किसी भी रीति से दूर ना हो प्यारे प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार प्रभु तूने कहा है तू ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी निराशेगा। ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारे हाथों को तूने थामा है और तू कभी नहीं छोड़ेगा प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु दया कर पिता, अनुग्रह कर प्यारे परमेश्वर और हम सबकी सहायता कर ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके, तेरी जिंदा आवाज को हम सुन पाए प्यारे प्रभु जी। ऐसा दया ऐसा अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई और बहन प्रभु यहाँ मौजूद है प्रभु, प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, तेरे लहू से ढांपती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। तू प्रत्येक को आशीष कर पिता। देख प्रभु क्या कमी करनी है प्यारे प्रभु जी, अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी कर मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु अभी जो तेरा वचन आएगा प्यारे प्रभु जी, तू अपने दास को और भी अभिषेक कर प्यारे परमेश्वर। और प्रभु हम विश्वास करते हैं जो वचन है प्रभु वो तेरी ओर से है पिता। तू सबको एक मन कर ताकि प्रभु हम तेरे इस वचन को सुन पाए और उस पर चल पाए। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे परमेश्वर। ओ धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव जो कि तेरा है प्रभु तुझे देते हैं। और प्रार्थना जीवते जिंदा सावर्तित पिता यीशु मसीह नाज़री के नाम से करती हूँ, आमीन सभी को जय मसीह की, शौमाई के जय यीशु। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज के इस विश्रामवार के दिन हम सब प्रभु के भवन में आ पाए, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। 2 तारीख 2 में आने वाला रविवार को हम लोग का सिर्फ एक ही सर्विस है जो कि सुबह 7 बजे है।
সামনের রোববার আমাদের শুধুমাত্র একটাই সার্ভিস আছে, যেটা সকালে 7টার সময় আসে। और इस सर्विस के लिए भी हम सबको अपना नाम रजिस्टर कराना है। जिस तरह हमने इस रविवार के लिए अपना नाम भाई रोशन को रजिस्टर कराया था, आने वाले रविवार को भी हम लोग को सुबह 7 बजे की सर्विस के लिए अपना नाम रजिस्टर करना है। 9 मई उसके बाद वाला रविवार को हम लोगों का 4 सर्विस है। प्रभु की दया से सर्विस बढ़ रहा है, 4 सर्विस है और उस दिन प्रभु भोज है। पहला सर्विस सुबह 8 बजे है, दूसरा सर्विस 10 बजे है, तीसरा सर्विस शाम को 4:30 बजे है और चौथा सर्विस शाम को 6:30 बजे है। तो 9 मई से हमारा 4 सर्विस है, सुबह 8 बजे, 10 बजे, 4:30 बजे और 6:30 बजे। इन चारों सर्विस में आने के लिए हमें अपना नाम रजिस्टर करवाना है कि आप कौन से सर्विस में आ रहे हैं। आप अपना नाम जरूर रजिस्टर करवाइएगा। और उस दिन हमारा प्रभु भोज भी है। 23 मई को भी हमारा प्रभु भोज है। उस दिन भी हमारा 4 सर्विस है। अब से हमारा 4 ही सर्विस होगा, जो कि सुबह 8 बजे, 10 बजे, शाम को 4:30 बजे और 6:30 बजे होगा। आज कोई ऐसा है जो पहली बार कलिसिया में आया है, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद। हम इस समय हमारे पास्टर जी को बुलाएंगे। जोरदार हाथ तालियों के साथ पास्टर जी का स्वागत करते हैं। Praise God, hallelujah. It is good to be in the house of God, amen. परमेश्वर के घर में आना और परमेश्वर के घर में रहना क्या ही अच्छी और धन्य विषय है, amen. आइए एक छोटे से गीत को हम लोग गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, इसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे दिल में नहीं है तो वो कहीं नहीं है, आमीन। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी पेड़ में है तो प्रभु वहां नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु किसी पर्वत के चोटी में है, प्रभु वहां नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु किसी घर में है, प्रभु वहां भी नहीं है। अगर प्रभु यहां नहीं तो प्रभु कहीं नहीं है, आमीन। तो आपको जानने की जरूरत है, क्या प्रभु, आपका प्रभु, मेरा प्रभु क्या यहां है कि नहीं?
अगर हमारे दिल में प्रभु नहीं तो प्रभु कहीं नहीं। आमीन। तो प्रभु को दिल में जरूर हमें जगह देना चाहिए। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। और आज मेरा विषय है सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज हेल। परमेश्वर से जो दूर होते हैं उनका जीवन नरक के जैसा हो जाता है, या उनका जीवन नरक है जो प्रभु से दूर जाते हैं। कोई मेरे लिए पढ़ दे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 43 से 48। আর তোমার হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা কাটিয়া ফেলো। ওই হস্ত লইয়া নরকে সেই অনির্বাণ অগ্নিতে যাওয়া অপেক্ষা বড় মূলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভালো। আর তোমার চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা কাটিয়া ফেলো। দুই চরণ লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বড় পোড়া হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভালো। আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা উৎপাটন করিয়া ফেলো। দুই চক্ষু লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক চক্ষু লইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার ভালো। নরকে তো লোকদের পিঠ মরে না এবং অগ্নি নির্বাণ হয় না। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। If your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than having your 2 hands to go into the hell, into the unquenchable fire. यहां लिखा हुआ है यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। क्या परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है कि हमारे हाथ को काट देना चाहिए? नहीं। आज परमेश्वर का वचन हमसे डिमांड करता है, आज परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि अगर आपका हाथ अगर आपको पाप करवाता है तो आप अपने हाथ को पीछे कर लें। आमीन। ऐसा नहीं कि मेरा हाथ पाप करवा रहा है और आज ही मैंने वचन में पढ़ा हाथ काट लेना चाहिए। पहले तो हम नस काटते थे, अब हाथ ही काट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। परमेश्वर हमें हाथ काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमें हाथ पीछे खींचने के लिए बोल रहे हैं। आमीन। हम लोग सुनते हैं ना, कोई बोलता है कि मेरे जिंदगी अगर किसी ने बर्बाद किया है तो इसका हाथ था। हम ऐसा नहीं बोल रहे किसी पार्टी का हाथ था, किसी इंसान का हाथ था। हाँ, हम लोग सब समय वी यूज दिस वर्ड, हम लोग सब समय ऐसा यूज करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपका हाथ आपको पाप करवाए, और आप हाथों से क्या करते हैं आपको पता है कि हम लोग हाथ से बहुत ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। आमीन। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ करते हैं तो बाइबल बताती है हमें कि हमें अपने हाथ को पीछे करना है और उस गलत काम को बंद करना है। तेरे लिए इससे भला हुआ कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने का नहीं। इससे अच्छा है कि हम 2 हाथ, इसका मतलब है इससे अच्छा है कि जो काम हम इस हाथ से कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि 2 पैसा अगर हम इस गलत हाथ से कमाते हैं या गलत काम करके कमाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये 2 पैसा शांति देगा। मैं आपको बोल दूं, ये आपके लिए नरक का दरवाजा खोलने जैसा है। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी खुशी होगी, हमें थोड़ा सा आनंद होगा हमें, परंतु आई एम टेलिंग यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
This is not going to give you the eternal life in your Christian life. ये आपके लिए अनंत जीवन नहीं दे सकता आपके मसीही जीवन में, परंतु ये आपके लिए नरक का दरवाजा खोल सकता है। अगर आप और आगे बढ़े, तेरे लिए इससे भला हो कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने का नहीं, और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। अगर मेरे पांव गलत काम की ओर जाते हैं, अगर आप किसी गलत जगह में चले गए हो और आप लौट नहीं पा रहे हो, तो आज परमेश्वर कह रहा है लौट आओ। आमेन। अगर आप बोल रहे हो कि আমি অনেক দূরে চলে গেছি, এবার মনে হয় না কি আমি আর ফিরতে পারবো, আমি আর আসতে পারবো, প্রভু বলছে ফিরে আয়, আমি তোমাকে ক্ষমতা দেব, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा कि तुम अपने गलत पैर को सही जगह में लेकर आओ, क्योंकि इसीलिए यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। आमेन। That's why Bible says I am the way। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही वो रास्ता हूं, मेरे रास्ते पर आपको चलना है। और 47 बोलता है यदि तेरे आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक में डाला ना जाए। हम लोग प्राय देखते हैं आंख, अभी बहुत लोग मास्क पहना है, अच्छा है, वेरी गुड, मास्क पहनना है। अभी मुझे नहीं मालूम कि आप हंसते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं। लास्ट संडे तक मुझे पता चल रहा था कि आप हंस रहे हैं ना चुपचाप हैं, परंतु अभी सिर्फ आपका आंख दिख रहा है, और आंख से मुझे वो समझना है कि आप मेरे वचन को सुन रहे हैं कि नहीं। आमेन। और इंग्लिश में भी एक कहावत है ना, योर आइज इज बिगर देन योर स्टमक। बहुत लोगों का आंख क्या है, पेट से बड़ा है। पेट है इतना छोटा, पर आंख उससे भी बड़ा है। कैसे, आप देखिएगा, किसी भी आप पार्टी में जाइए या भोज में जाइए या आप किसी जन्मदिन में जाइए या आप किसी शादी में जाइए, आप जैसे ही वहां देखते हैं खाना, और उसके बाद आपका पेट इतना छोटा है पर आंख इतना बड़ा है, द बिरयानी दो, कचौड़ी भी दे, लाछा पर वो भी दे, तंदूरी वो भी दे, सलाद दे, चटनी दे, पापड़ दे, सर एक पनीर है जो लोग वेजिटेरियन वो भी दे, सब दे। इतना रख लिया थलिया में, इतना प्लेट में रखा हुआ है, खा ही नहीं सका, थोड़ा सा खा के उठ के चला गया। खेते पाच्छी ना অনেক বেশি দিয়ে দিয়েছে এরা। ये नहीं बोल रहा बहुत बेसी ले लिया है, क्योंकि बहुत लोगों का आंख क्या है पर पेट, बहुतों को मालूम ही नहीं है कि हमारी जरूरत कितनी है। आमीन। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज माय नीड। आमीन। बहुत पहले मैंने प्रचार किया था, बी कंटेन्ड। Very soon I will be preaching about this financial things, कि how we have to control our finances, कैसे हमें अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना चाहिए। I'm just working on this। हमें कंटेन रहना है। अगर परमेश्वर ने हमें 200 रुपीस दिया है और हम एवरी डे, अगर रोज परमेश्वर हमें 200 रुपया दे रहा है और हम लोग बगल में देख रहे हैं एक आदमी रोज 2000 रुपया कमा रहा है, परंतु हमारा आंख 200 में नहीं है, परंतु हमारा आंख कहां है 2000 में। इसलिए परमेश्वर हमारे 200 रुपया को आशीष नहीं दे रहा है, क्योंकि हम कंटेंट नहीं है। आमीन। हमें अपने आंखों को ठीक करना है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर ने आपको 200 रुपीस दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को 200 के लिए, क्योंकि ये 200 आपका है, आमीन, वो 2000 आपका नहीं है।
आमीन। जो आपका नहीं है उसमें आंख नहीं लगाना है, जो आपका है उसमें आंख लगा के धन्यवाद देना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो थोड़ी सी आशीष की वजह से परमेश्वर आपको ओवरफ्लोइंग आशीष दे सके। आज हम लोगों के जीवन में हम लोग दूसरों को देखने की कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि हमें अपने आप को देखना है। आमीन। We need to be content what we have in our life. हमारे जीवन में जो भी हमारे पास है हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब हम इसको पार करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होना स्टार्ट होते हैं। और जैसे हम परमेश्वर से दूर होते हैं हमारा जीवन नरक की तरह हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना प्राय, मेरा जीवन तो नरक बना दिया ये आदमी, है ना। अधिकतर हस्बैंड वाइफ बोलता है ऐसा, या वाइफ बोलती है, या आदमी बोलता है, इस औरत से शादी करके मेरा जीवन नरक बन गया है ना। फिर उसके बाद थोड़ा देरी में ही स्वर्ग बन जाता है, खाना वाना खाता है एक साथ। बार बार नरक होता है, बार बार स्वर्ग होता है, ठीक है। अभी तो बच्चा लोग भी बोलता है मेरा जीवन नरक हो गया घर में पैदा हो गया। कहा है जिद, तो उसका बाबा उसको स्कूटी किन के दिया, उसका बाबा उसको क्या किन के दिया, मोबाइल फोन किन के दिया, और क्या क्या दिया। ये कुछ खरीद के ही नहीं देता है। जब भी बोलता है पैसा नहीं है, मेरा जीवन नरक हो गया। जैसे ही पापा खरीद देता है जीवन स्वर्ग हो गया, जैसे ही पापा कुछ खरीद के दे देता है जीवन अच्छा हो गया। तो हम लोग why we speak, we use this kind of phrase, हम इस तरह के फ्रेज को यूज करते हैं कि मेरा जीवन, परंतु बाइबल बताती है कि आज सच में अगर हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं तो याद रखना हमारा जीवन नरक की ओर जा रहा है। आमीन। और हमारा जीवन नरक जैसा हो जा रहा है। बाइबल बताती है गलातियन चैप्टर 6 वर्स 8 में, गलातियों उसका 6 का 8 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए। द बुक ऑफ गलातियन चैप्टर 6 वर्स 8, somebody can read for me। क्योंकि उद्देश्य যে গুণে সে মাংস হইতে ফলস্বরূপ শস্য পাইবে, কিন্তু আত্মার উদ্দেশ্যে যে গুণে সে আত্মা হইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পায়। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Amen. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Amen. बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो क्या करेगा, वो शरीर के द्वारा क्या करेगा, विनाश की कटनी काटेगा। आमीन, हालेलुया। परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा क्या पाएगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। अगर आज যদি আজকে আপনি যদি শরীরকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন, মনে রাখবেন এই শরীর আপনাকে অনেক কষ্ট দেবে। अगर आप सिर्फ शरीर के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो ये शरीर आपको बहुत तकलीफ देने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज नॉट मी टेलिंग, दिस इज गॉड्स वर्ड इज टेलिंग। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन। मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारे लोग सिर्फ अपने शरीर के बारे में, अधिकतर माँ बाप, अधिकतर भाई बहन, अधिकतर हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको ना ठीक रख, प्रभु हमको ठीक रख, प्रभु ठीक, प्रभु प्रभु। अगर आपसे आपको पूछे ठीक रखने का मतलब क्या होता है, हम लोग को खुद नहीं मालूम। प्रभु तुम्हें हमारे ना भालो रखो, भालो माने, भालो माने की, भालो माने हम लोग को सिर्फ एक ही मीनिंग मालूम है, वो क्या है, पैसा दो। भालो माने मतलब होता है अच्छा घर दो, भालो मतलब ही होता है सुंदर गाड़ी दो। हम जब इच्छा हो हम खाना खा सकते हैं होटल में, जब हमको इच्छा हो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, यही है भालो जीवन। नो, दिस इज नॉट अ गुड लाइफ। ये गुड लाइफ नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास अच्छा घर है, जिनके पास अच्छी गाड़ी है, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, परंतु उनके जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं है।
ये अच्छा जीवन नहीं है। अच्छा जीवन तो ये है कि जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जो शरीर के लिए जीता है या शरीर के लिए मन लगाता है, उसके लिए विनाश की कटनी है, उसके जीवन में विनाश है। परंतु जो आत्मा के लिए जीता है या अपने जीवन अपने आप को पवित्र करता है, उसका शरीर भी सही रहता है, उसका जीवन भी सही रहता है, उसका परिवार भी सही रहता है। आमीन। मेरे प्रियो, आज हमें पवित्र आत्मा में चलने की जरूरत है। যদি আজকে আমরা স্পিরিচুয়ালি চলছি, আমাদের শরীর অটোমেটিক আশীর্বাদ পাবে, আমাদের পরিবার অটোমেটিক আশীর্বাদ পাবে। আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য থাকা দরকার कि আমার জীবন স্পিরিচুয়ালি আছে কি নয়। आमीन। हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारा जीवन पवित्र है कि नहीं। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और उसने हमें पवित्र रहने के लिए सिखाया है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 26 and 27 में क्या लिखा था? बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 verse 26 and 27। কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইলে আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক পাপ করি, তবে পাপার্থ আর কোনো যোগ্য অবশিষ্ট থাকে না, কেবল থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির চন্দ্রতা। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आमीन। For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. If we do the sin deliberately, अगर हम अपने गुनाहों को जानबूझकर करते हैं, तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आमीन। हम जानबूझकर, अगर आज परमेश्वर का वचन मेरे पास और आपके पास अगर आया है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए। आमीन। जब आप माता पिता जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा बेटी ये काम नहीं करना चाहिए, जब कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन अपने छोटे भाई या बहन को बोलता है ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जब आप किसी को समझाते हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए और आप देख रहे हो कि वो इंसान जानबूझकर कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरा बोलना बेकार है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं देखता हमें? आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि कोई भी गुनाह अगर आज हम कर रहे हैं, मेरे प्रियो याद रखें, शारीरिक रिश्ते की ओर ना जाएं। फिजिकल रिलेशनशिप इज नॉट विल टेक यू टू द हेवन। क्योंकि शारीरिक अभिलाषा या शारीरिक रिश्ते आपको स्वर्ग की ओर नहीं ले जा सकते, परंतु स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद योर गॉड कैन टेक यू टू हेवन। आमीन। परमेश्वर से रिश्ता मजबूत करें मेरे प्रियो, प्रभु से रिश्ता मजबूत करें। अगर आज आपका भाई आपको छोड़ता है, आपकी बहन आपको छोड़ देती है, आपके परिवार आपको छोड़ देता है, नो प्रॉब्लम, परंतु परमेश्वर का हाथ पकड़ के रखिए, उनका हाथ मत छोड़िए। अगर उनका हाथ छूट जाए तो सब छूट जाएगा हमारे जीवन में मेरे प्रियो। परमेश्वर के हाथ को पकड़ के रखिए और जो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं वे जरूर आपके जीवन में वापस आएंगे। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को शैतान के हाथ में मत दीजिए मेरे प्रियो। डोंट सेपरेट फ्रॉम गॉड, अदरवाइज योर लाइफ विल बी हेल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आज आप अपने जीवन को शैतान के हाथ में कर देंगे तो वो आपके जीवन को नरक जैसा बना देगा, आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी मेरे प्रियो। आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि आइए हम इन सारे बातों से फिरें। इफ वी आर डूइंग सिन डेलिबरेटली, हम जानबूझकर अगर पाप कर रहे हैं, तो प्रभु कहता है हमें लौटने की जरूरत है। आमीन। आज हम सबको एक समस्या है, मैं आपको बताऊं। रेवलेशन 21 वर्स 8 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका 1 है, इसका 8 में कोई जल्दी से पढ़ने में नहीं लिखा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और तोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आमीन। কিন্তু যাহারা ভীরু বা অবিশ্বাসী বা ঘৃণার্থ বা নরঘাতক বা বেশ্যাগামী বা মায়াবী বা প্রতিমা পূজক তাহাদের এবং সমস্ত মিথ্যাবাদী অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে, ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু। पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। यहां लिखा हुआ है डरपोक। कितने लोगों को डर लगता है? कितने लोग को डर लगता है? ऑनेस्टली बाप रे, और सब किसी को नहीं डर लगता है? कत लोग भय पाए? अच्छा, देखिए बहुत लोग हाथ नहीं उठाए, पर बहुत लोग को डर नहीं लगता है। वेरी गुड। अभी आप बस से आ रहे थे या ऑटो से आ रहे होंगे, और जो कंडक्टर है, बस का कंडक्टर हो या ऑटो वाला हो, कंडक्टर आपको पैसा देने का समय आपका हाथ में ऐसे पैसा दे रहा है, ऐसे देने की जगह ऐसे दे रहा है। क्या कर रहा है कंडक्टर? बार बार। इवन आप नतून रास्ता में पैदल चल के भी आ रहे होंगे, अगर ऑटो वाला आपको ऐसे पैसा नहीं देके अगर ऐसे दे दिया होगा, तो आप बार बार यहां तक आते थे 2 बार मार दिए होंगे। क्यों? ऑटो वाला का ना कपड़ा इतना गंदा था, कैसा आदमी है, इतना अच्छा से हम दिए और वो पूरा एकदम पसार के दिया। लीजिए, छूने का क्या जरूरत? क्यों? डर लगता है। क्या ये डर है? नहीं, ये डर नहीं, ये प्रोटेक्शन है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना। मैं परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। अगर कोई बोलता है ये डर नहीं, इसको डर नहीं कहते। अब कुछ लोग तो जरूरत से ज्यादा है। बाइबल में लिखा है ना, कोई भी चीज ओवर स्पिरिचुअल ठीक नहीं है, या ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं है, ओवर होना सही नहीं है। क्या बोलते हैं? हाँ, आपको मालूम है, इसमें होना चाहिए, पर अगर इसमें भी नहीं है तो मुश्किल है। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, आमीन, परंतु परमेश्वर ने हमें हिम्मत और साहस की आत्मा दी है। हमें डरना नहीं है। ये महामारी से हमें डरना नहीं। मैं जानता हूं कि अभी कई लोग इस संसार को छोड़ के चले गए, और आप टीवी अभी देख रहे हैं। अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट इन सारे न्यूज में आ गया है। फिर से बार बार आप चैनल घुमा रहे हैं। हो सकता है आईपीएल हो रहा हो, परंतु आईपीएल का जैसे ही ऐड होता है या टाइम आउट होता है 2.5 मिनट का, आप फट से न्यूज घुमाते हैं। कोई अपडेट है क्या, कुछ खबर? फिर उसके बाद आ जाते होंगे आईपीएल में, पर न्यूज जरूर देखते हैं। रात में सोने से पहले एक बार देख लेते हैं आज के कत हो 3 लाख 4 लाख 2 लाख। आप यू आर बैक टू दैट न्यूज अगेन। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप डरते हो, परंतु मुझे यह कहना है आपको कि आप अपने जीवन को पवित्र करो, और आपका सारा चिंता भार परमेश्वर उठाएगा। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, अगर आप आत्मिक नहीं हो,
तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 का 28 अगर आप पढ़े तो वहां पर साफ साफ लिखा है। कोई पढ़ दे मेरे लिए जल्दी से। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28, somebody can read for me quickly। আর যাহারা শরীর বধ করে কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না, কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয় নরকে বিনষ্ট করিতে পারে, বরং তাহাকে ভয় করো। आमेन। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। Amen. Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं या शरीर को मार सकते हैं, उनसे ना डरना। आमीन, हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। अगर आज आपको डर लगता है उन सारी चीजों के लिए, आपको अपने बॉस से अगर डर लगता है वो मेरा नौकरी न ले ले, अगर आपको डर लगता है कि मेरा शरीर में कहीं बीमारी न आ जाए, इनसे नहीं डरना है हमें। हमें अगर डरना है तो परमेश्वर से डरना है। आमीन। अगर हम परमेश्वर से डरेंगे तो हो सकता है जॉब हमसे जा रहा हो सकता है मेरा शरीर मुझे छोड़ रहा हो सकता है मेरा परिवार मुझे छोड़ रहा हो सकता है मेरे फ्रेंड मुझे छोड़ रहे हो, नो प्रॉब्लम। याद रखिए आयुब की तरह आयुब ने सब कुछ जाने दिया, सबको जाने दिया, परंतु परमेश्वर को जाने नहीं दिया अपने जीवन से। आमीन। क्योंकि अगर परमेश्वर जब उसके संग था तो अंत में हमने देखा कि परमेश्वर ने आयुब को वो सब कुछ लौटा दिया। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी इंसान के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए आप परमेश्वर से अलग मत हो जाइए। कोई भी गुनाह करने से पहले आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु तुम्हें जानो আমার এটা দরকার, প্রভু তুমি জানো আমাকে ওই ব্যক্তি চাই আমার জীবনে, প্রভু তুমি জানো যে প্রভু যদি আমি এই জিনিসটা যদি না পাই আমার জীবনে, আমার লাইফ কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। না, যদি আপনি ঈশ্বরকে দূরে করছেন, you need to be sure about it, आपका जीवन नष्ट होगा। परमेश्वर को दूर करके कोई भी काम मत करो, परमेश्वर को संग रखकर हर एक काम करो, तो आपको परमेश्वर नष्ट होने कभी नहीं देगा। मेरे प्रिय, प्रभु से दूर मत हो जाओ। कुछ भी करो, अंधेरे में काम मत करो, छिप के काम मत करो। अगर आप कोई काम छिप के करते हो तो आपके मन में ऑटोमेटिक डर आ जाता है, ऑटोमेटिक डर आ जाता है, क्योंकि आप छिप के काम करते हो, आप अंधेरे में काम करते हो। जब आपके जीवन में अंधेरा ही नहीं रहेगा तो आपके जीवन में डर भी नहीं रहेगा। आमीन। कोई भी काम, क्योंकि बाइबल में लिखा है गुप्त, आमीन, एक है गुप्त प्रेम खुली हुई डांट से उत्तम है। आमीन, हालेलुया। आपको यह जानने की जरूरत है, क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो शरीर को घात कर सकता है परंतु आत्मा को छू नहीं सकता, उससे डरने की जरूरत है। परंतु जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है, हमें उससे डरने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है, और हमारा परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को बचा सकता है। आमीन, हालेलुया। जो हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है वो हमारे आत्मा को छू नहीं सकता, परंतु जो हमारे आत्मा को छू सकता है वो हमारे शरीर को भी बचा सकता है। आमीन। और वो है हमारा सच्चा परमेश्वर। हमें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे। The book of John chapter 3 verse 16.
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए। आमीन। क्या आज आप किसी फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आप परमेश्वर को वो पाप या गुनाह या वो बोझ क्या प्रभु को नहीं देना चाहते? अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपका वो पाप और वो गुनाह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, कटनी आपको काटना है, क्योंकि हल आप जोत रहे हो। आमीन। परमेश्वर को खुश करो हर जगह में। अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे तो प्रभु आपको कभी भी दुखी होने नहीं देगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। गिव योर गॉड इन फर्स्ट पोजीशन। आमीन। अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो, उसके बाद कोई भी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, कोई भी हो, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर पहला स्थान में रहेगा तो माँ भी अच्छी रहेगी, भाई भी अच्छा रहेगा, बहन भी अच्छी रहेगी, सब अच्छे रहेंगे, क्योंकि विपत्ति तो सामने से आती है। आमीन। और संभालने वाला तो हमारा परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? मैं तुम्हें क्या होने नहीं दूंगा? नष्ट होने नहीं दूंगा। आमीन। परमेश्वर अभी भी चाहता है कि हम नष्ट ना हो जाएं। प्रभु अभी भी चाहता है कि हम विनाश ना हो जाएं। आमीन। परमेश्वर एक्सट्रीम लेवल में जाकर भी हमें बचाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है। डोंट सेपरेट फ्रॉम गॉड। प्रभु से दूर मत हो जाइए, नहीं तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा। आज बोलिए, हमारे जीवन में ऐसे कितनी समस्याएं हैं जिसके कारण हमारे फैमिली में रोज झगड़ा होता है। ऐसे कितने प्रॉब्लम है जिसके कारण रोज हमारे घर में तकलीफ, कष्ट, बीमारियां, बहुत कुछ हमारे जीवन में आ गया है। और आज हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा जीवन कब ठीक होगा, कबे আমার লাইফ ভালো হবে, কবে আমার জীবন সুন্দর হবে। আমি রোজ প্রার্থনা করছি প্রভু থেকে, কিন্তু আজকে কি আপনি ওই পথ থেকে দূরে যেতে চাইছেন? আপনি কি ওই ভুল পথ থেকে সরতে চাইছেন? আপনি একবার সরে দেখুন, ঈশ্বর আপনার জীবনে ওনার অনুগ্রহ, ওনার দয়া নিশ্চয় দেবে। আমেন। হালেলুয়া। You have to away from sin but come closer to God. Amen. हालेलुया। हमें पाप से तो दूर जाना है, परंतु अपने प्रेमी और अपने प्रभु के करीब आना है। आमेन। हम जितना परमेश्वर के करीब आएंगे मेरे प्रियो, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर से उतना ही स्ट्रांग होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर, मैं आपको बता दूं, हमारे लिए परमेश्वर ने नरक नहीं बनाया, हम खुद से अपने लिए नरक बना रहे हैं। आमेन। आज प्रभु हमें आशीष करना चाहता है। आप देख रहे हैं बाहर इतनी मौतें हो रही हैं। लास्ट ईयर इतना मौत हम लोगों ने नहीं देखा। लास्ट ईयर इतने सारे केसेस हमने नहीं देखा। लास्ट ईयर जब हम लोग अपने घरों में थे और हम लोग बोल रहे थे इस देश में इतना हुआ, उस देश में इतना हुआ, उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, और हम लोग जब सुन रहे थे हमारे घर में बैठ के 700, 2000 और आज तो लाखों में जा रहा है सब चीज। कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे जगह नहीं है, कहाँ रखा जाएगा इन सब चीजों को। आप देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है। आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से इस संसार को छोड़ के चले जा रहे हैं। इवन जो संसार को छोड़ के जा रहे हैं उनको कांधा भी नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नसीब भी उन्हें नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, हमारा शारीरिक जीवन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंदर में सब कुछ सही रखिए, बाहर परमेश्वर ठीक रखेगा। आमेन। हालेलुया। अपनी आत्मा को सही रखिए। परमेश्वर
अपने लहू से ढांक कर रखेगा आपको, अपने स्वर्गदूतों की आड़ में रखेगा। परमेश्वर हमारा सुरक्षा करना जानता है मेरे प्रियो। अपने आप को पवित्र बना के रखिए, अपने आप को शुद्ध बना के रखिए, अपने आप को अच्छा बना के रखिए। किसी के बारे में कुछ ना कहें, किसी की आलोचना ना करें, परंतु परमेश्वर को पवित्रता से फॉलो करें। और परमेश्वर के जितने करीब आप रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उतनी आशीष देगा आपको। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं एक 2-3 वर्ड आपको बताना चाहता हूं कि आप इस महामारी में भी अपने घरों में रहना कोशिश कीजिए, अपने घरों में रहिए। जो लोग बाहर नहीं जाना है मत जाइए बाहर, घर में रहिए। परंतु जो लोग काम करने जाते हैं, जो लोग नौकरी करने जाते हैं, जो लोग ड्यूटी जाते हैं, आप सुबह घर से जब निकलते हैं तो प्रार्थना करके निकलिए। रोज प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु मैं अपने आप को तेरे पवित्र लहू से बांधता हूं प्रभु, ताकि कोई भी महामारी मुझे टच ना कर सके। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर का लहू लगाया है। आमीन। हालेलुया। रोज ये प्रार्थना करके घर से निकलिए, और जब घर लौटते हैं तो प्रभु को धन्यवाद जरूर देना कि प्रभु मैं सुरक्षित अपने घर में लौट आया। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। Don't separate from God। परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर के और करीब आइए। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के जितना करीब आएंगे, परमेश्वर आपको उनका करीब होने का एहसास आपको दिलाएगा। वो एहसास क्या है मालूम है? उसका अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी उन्नति, उसका फेवर। और परमेश्वर भरपूरी से हमें आशीष करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं किसी विषय के लिए कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके आने बोल रहा हूं। मैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूं, इतना भी हो गया कि आप मुझसे मिल नहीं सकते अभी। ये सारे आपके सेफ्टी के लिए है, क्योंकि आई रियली डू केयर ऑफ यू। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें बुद्धि से चलना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे लोगों ने कहा था हमको तो सैनिटाइजर का जरूरत नहीं है, हमको हैंड वॉश का जरूरत नहीं। चला गया प्रभु के पास, चला गया। प्रभु हमें ज्ञान दिया है, हमें ज्ञान से चलना है। परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है, हमें बुद्धि से चलना है। आमीन। हालेलुया। ये सब आपके सेफ्टी के लिए है। याद रखिए, पिछले साल हम लोग घर में बैठे थे इस समय, और हम लोग तड़प रहे थे चर्च आने के लिए। हम लोग एक मछली जो बिन पानी के रहती है, हम लोग बेचैन हो गए थे प्रभु के घर आने के, परंतु प्रभु ने इस साल में इस तरह आने का मौका दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये सिस्टम जो भी हुआ है इसको फॉलो करें, इस प्रोटोकॉल को ब्रेक ना करें, जरूर फॉलो करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह दे। प्रभु से दूर मत जाइए, प्रभु के करीब आइए, प्रभु के संग रहिए। जितना प्रभु के करीब रहेंगे, परमेश्वर आपको उतना आशीष देगा। चिंता मत कीजिए कि इस समय अगर लॉकडाउन हो जाए या कुछ हो जाए तो हम कहां से खाएंगे, हम कहां से क्या करेंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं ना खत्तों में बटोरते, परंतु फिर भी यहोवा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। आमीन। परमेश्वर मुझे और आपको भी खिलाएगा। आमीन। पिछले लॉकडाउन में भी बहुतों के पास नौकरी और काम नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने हमें कहीं ना कहीं से भोजन दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों की निगरानी करना और रखवाली करना और मदद करना और सहायता करना जानता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको परमेश्वर के संग रहने की जरूरत है। आपको परमेश्वर को थामे रहने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। डोंट सेपरेट फ्रॉम गॉड। प्रभु से दूर मत जाइए, प्रभु के करीब आइए, क्योंकि जितना प्रभु से दूर जाएंगे आपके जीवन में उतना अशांति होगा। आमीन। आप प्रभु के जितना करीब रहेंगे, बाइबल में लिखा है, ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार है। आमीन। आप जहां भी रहिए, प्रभु आपको शांति देगा। आमीन। कहीं भी जाइए, परमेश्वर अपनी शांति, अपनी शांति आपके जीवन में देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु के संग रहिए, प्रभु के पास रहिए, प्रभु से दूर मत जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए बाहर, प्रभु को मत छोड़िए। कोई आपको छोड़ देता है, नो प्रॉब्लम। आपको किसी को छोड़ना है, छोड़ दीजिए, प्रभु को मत छोड़िए। आमीन। अगर आप प्रभु को थामे रहेंगे,
तो जो लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, प्रभु उनको वापस लाएगा। आमीन। और परमेश्वर दुगने रूप से परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। May God bless you all of you। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत के द्वारा दान द सॉन्ग्स वेट प्रॉमिस जो प्रभु का है हम प्रभु को देंगे। अनुगाएंगे यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। देखो पाना है, देखो पाना है, देखो पाना है शैतान। देखो पाना है, देखो पाना है, देखो पाना है शैतान। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। देखो भागा भागा, 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 देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना की ओर हम जाएं। Let's close our eyes and look to Lord in our prayer. Don't separate from God. परमेश्वर से अलग ना हो जाए। आज हमारे जीवन में जो अशांति है, आज हमारे जीवन में जो तकलीफ है, आज हमारे जीवन में जो कष्ट है मेरे प्रियो, आज हमें और आपको देखने की जरूरत है। আসুন আমরা চেক করি আমাদের লাইফ। আমরা কি কোনো জায়গায় প্রভুকে দূরে করছি? হতে পারে আমাদের হাত থেকে, হতে পারে আমাদের পা থেকে, হতে পারে আমাদের চক্ষু থেকে। Are we going away from God or not in our life? क्या हम प्रभु से दूर जा रहे हैं? प्रभु के पास आइए इस समय। हो सकता है बाहर बहुत महामारी है मेरे प्रियो, बाहर लोग परेशान हैं, बाहर लोग खत्म हो जा रहे हैं मेरे प्रियो। एक अजीब सा माहौल हम बाहर देख रहे हैं, परंतु आइए हम प्रभु की दया मांगे अपने जीवन में। आइए हम प्रभु की आशीष मांगे अपने जीवन में और प्रभु को बोले, प्रभु তুমি আমার সঙ্গে থাকো, তুমি আমার পাশে থাকো। क्योंकि इस संसार को जिसने बनाया मेरे प्रियो, उसने अपने आप को ही हमें दे दिया ताकि इस संसार की सारी खुशी हमें मिल सके। सारी सृष्टि के
उसी को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आज इस संसार में अगर किसी की सहारे की जरूरत है तो वो है परमेश्वर। ये पूरे वर्ल्ड में अगर कोई बचा सकता है हमें तो परमेश्वर। आज हमें उनके सहारे की जरूरत है। आज प्रभु को कहें, प्रभु हमें हर संकट से बचा, हमें हर विपत्ति से बचा। तेरे हाथों में हमारा जीवन है प्यारे प्रभु। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु ने शैतान से कहा कि तुम आयुब को सब कुछ कर सकते हो परंतु उसके प्राण को नहीं छू सकते हो क्योंकि वो मेरे अधिकार में है। आज आइए प्रभु को कहें कि प्रभु मेरा जीवन तेरे अधिकार में रख प्यारे परमेश्वर, ताकि शैतान हमारे जीवन को छू ना सके प्यारे प्रभु। तू अपने लहू से ढांक के हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। Come on, church, lift your hand and worship. अपने हाथ में उठा कर उसके नाम में करते हैं। मेरा जीवन तेरा है प्यारे प्रभु। My life belongs to you, Lord. Oh, you realize it. We praise you, Jesus. Hallelujah. हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने ना देना। अगर आज आपको डर लगता है तो आज प्रभु को कहे, प्रभु हम तेरे हैं, हमारे जीवन में तेरा कंट्रोल हो प्यारे प्रभु। अगर आज आपका कोई भी भाई या बहन या रिश्तेदार या फ्रेंड इस महामारी के चपेट में आ गया है तो आज उनके लिए भी आप क्लेम करें और कहें, प्रभु तू उन्हें बचा, उनके जीवन में भी तू अधिकारी बन। हमारे धैर्य को, हमारे धीरज को प्रभु हम बनाए रखे। बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहता है जय उसी का है। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हम दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव
हमारे पूरे भारत को चंगा कर प्रभु। हील आवर लैंड ओ गॉड। आज जितने लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु, बहुत लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला, बाहर सोए हुए होंगे प्रभु। बहुत लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बाहर तड़प रहे होंगे प्रभु। बहुतों को दवा नहीं मिल रहा प्रभु, उसके लिए प्रभु विचलित हो गए होंगे प्रभु। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है दवा खरीदने के लिए। बहुतों के पास प्यारे परमेश्वर ऑक्सीजन खरीदने का पैसा नहीं है। बहुतों के पास बहुत तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है, क्योंकि ऐसा इंसान बीमार हो गया जो उनके घर का मुखिया है, जो पूरे घर को चलाता है, और पूरा घर मायूस हो गया। अब क्या होगा प्रभु? हम प्रार्थना करते हैं कि अपने लहू का छिड़काव छिड़क दे पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में यीशु तेरी चंगाई की लहर दौड़ने पाए प्रभु। हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों को अपने लहू से ढांक के रख प्रभु जी। हमारे कलीसिया के हमारे हर एक बच्चों को, हमारे कलीसिया के हर एक नौजवानों को, हमारे कलीसिया के हर एक मिडिल एज लोगों को, हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्गों को प्रभु अपने लहू से ढांक प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे हाथों की रचना है। हम हैं तेरे हाथों की रचना। अपना जीवन शैतान के हाथ में नहीं देना है, गुनाह में नहीं जाना है। Don't separate from God। प्रभु से दूर नहीं जाना है हमें प्रभु के और करीब आना है। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने ना देना। सब अपने हाथ को उठाते हुए कहें, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, मुंह खोलते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु तू अपने सुरक्षा की बेड़ियों में हमें बांध के रख प्रभु जी। हमारे पूरे परिवार को, हमारी पूरी कलीसिया को, हमारे पूरे बंगाल को, हमारी पूरी इंडिया को प्यारे परमेश्वर, और प्रभु पूरे संसार को प्यारे परमेश्वर, तेरी आशीष हो प्यारे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो प्यारे परमेश्वर। ओ रेबा शेतेरे राशुकुरालारिया लाबाराबा। Hallelujah, we praise you God, we praise you God, we praise you God। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज आप यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, प्रभु को धन्यवाद दें। आज आप यहाँ चंगे खड़े हैं, प्रभु को धन्यवाद
धन्यवाद दे। आप यहाँ परमेश्वर की आराधना कर रहे उसके लिए धन्यवाद दे। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे प्रभु को धन्यवाद दे, ताकि परमेश्वर को आप हर दिन धन्यवाद दे पाए। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी प्रार्थना वो कर सके। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को हम ले सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, तू इस पापी को छूना पड़े। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता, इस महामारी में भी प्रभु जी तू हम सबको तेरे भवन आने में सहायता किया। पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता, इस महामारी में जो भी जूझ रहे पिता परमेश्वर, तो प्रत्येक को अपने पवित्र लहू, पवित्र सामर्थ बड़े हाथ से पिता ढाक ले यीशु मसीह। ओ पिता परमेश्वर, तू अपनी छत्र छाया में तू प्रत्येक को ढाक पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी कमी घटी हो रहा है पिता परमेश्वर, जो ऑक्सीजन का जो भी प्रॉब्लम दिख रहे पिता परमेश्वर, तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम को तू सॉल्व कर पिता परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, जो भी कोरोना कोविड से पिता जो भी संक्रमण है पिता परमेश्वर, तो उन्हें भी छू और चंगाई दे यीशु मसीह। और प्यारे परमेश्वर, हमारे मंडली में हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर को अपने पवित्र लहू में बांध ले यीशु मसीह। प्रभु जी, शैतान का कोई भी चाल पिता हमारे जीवन में ना चल पाए पिता परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस महामारी में भी प्रभु जी, जो भी जिस काम से जुड़े हुए प्रभु जी, उस काम में तेरी आशीष हो यीशु मसीह। जो पिता परमेश्वर, जो भी कामकाज से पिता बैठे हुए प्रभु जी, तो क्या इस महामारी में प्रभु जी वो पिता सोच रहे कि हम क्या करेंगे, प्रभु जी तू उन्हें तेरी सामर्थ बड़े लहू से बांध दे यीशु। प्रभु जी, तू उन्हें सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू उन्हें विश्वास पूर्ण रख पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आज के वचन में तेरी आशीष हो प्रभु जी। प्रभु जी, आज के वचन में पिता हमें पिता पाप से पिता बचा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक पल पिता परमेश्वर हम लोग जो पाप करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो पाप से हमें तो बचा, हमें बुद्धि दे पिता परमेश्वर कि तेरे राज्य में कैसा चला जाए, तेरे तुझे कैसा खुश किया जाए पिता परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, हर एक गलती को पिता स्वीकार करते पिता, हर एक पाप को तू क्षमा कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जाने अनजाने में बहुत पाप करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हर एक पाप को तू क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, आज जो दान दशमांश आए पिता परमेश्वर, उसमें तेरी आशीष हो। जो पिता दिए पिता परमेश्वर, उस हाथ को तू आशीष दे पिता परमेश्वर। जो नहीं दे सके पिता परमेश्वर, तूने भी आशीष दे पिता परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, हम विशेष से प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली की पालक के लिए प्रभु जी, तो उन्हें तो और भी आशीष कर, तेरे राज्य में और भी आगे बढ़ा पिता परमेश्वर। तेरे राज्य की बुलंदी को छूने में सहायता कर प्यारे परमेश्वर। शैतान का हर एक चाल से पिता तू बचा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, पूरा परिवार को तू अपने पवित्र लहू से बांध ले यीशु मसीह। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता, हमारे मंदिर में जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, उन्हें भी छू और चंगाई दे यीशु मसीह, अपने पवित्र लहू से बांध ले यीशु। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना मेरा जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से सुन, आशीर्वाद राज्य कबूल कर, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बहादुर में लौट कर हम विश्वास में लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।